Hello friends, I'm Dr. Dushan Patel. Welcome to my YouTube channel DGP Maths. So our today's topic is very important and this topic seems to very difficult for students. Today we are going to do multiplication of two matrices. Before this we have seen addition of two matrices, subtraction of two matrices and multiplication of a matrix by a scalar. So today we are going to see multiplication of two matrices. Friends, this is little bit difficult. So we have to understand when can we multiply two matrices and how to multiply. We cannot multiply any two given matrices. Like in addition, order must be same. In subtraction, order must be same. Similarly, in multiplication there is some condition, but it is not like addition and subtraction. If orders are same, then we cannot say that we can multiply. So what is the condition that we have to see first of all? So I have a matrix A, I have a matrix B. So I have two matrices A and B. I want to find out A into B. I want to find out A into B. Friends, here order of matrix is very important. कौन सा मैट्रिक्स पहले है और कौन सा मैट्रिक्स बाद में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस केस में अगर हम ए बी फाइंड कर रहे हैं, सो ए इज फर्स्ट मैट्रिक्स and this B is second matrix. A is first matrix and B is second matrix. अगर हम BA फाइंड कर रहे हैं तो B will be first matrix and A will be second matrix. Now we have to see what is the condition for multiplication. This is very important and it's not easy as in case of addition and subtraction. So what is the condition? So condition is number of column of first matrix must be equal to number of rows of second matrix. तो पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम, फ्रेंड्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज मस्ट बी सेम. अगर ये सेम है तो हम उन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट मल्टीप्लाई गिवन टू मैट्रिक्स. तो फिर से व्हाट इज द कंडीशन? फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए. तो इस केस में अगर हम ए बी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यहां पे फर्स्ट मैट्रिक्स ए की क्या सेम होनी चाहिए? कॉलम. ए की हम कॉलम लेंगे, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स है हमारा बी, तो बी की नंबर ऑफ
rows of B must be same। अगर ये सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। तो फ्रेंड्स फिर से रिपीट करते हैं एक बार, अगर हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए तो हम मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल इन दैट केस। सो आई होप व्हेन वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, ये आप सभी को क्लियर हो गया। We have taken two matrices, A is equal to Aij, order of this matrix is n cross n. So n is number of rows, n is number of columns. Another matrix B is equal to Bij, its order is n cross p. N is number of rows and p is number of columns. Now I want to find out A into B. So first of all we need to check whether it is possible or not. So what is the condition? Here first matrix is A and second matrix is B. So condition is number of columns of first matrix. In our case first matrix is A. So number of columns of A, that is n. It must be same as number of rows of second matrix. So in our case second matrix is B and number of rows in B is n. तो फ्रेंड्स इस AB के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स A की नंबर ऑफ कॉलम इज n and second matrix B की number of rows is n, दोनों सेम है, therefore A into B is possible। तो यहां पे हम अभी लिख देते हैं फिलहाल A into B What is the reason why it is possible? Because number of columns of A, that is n in this case, is equal to number of rows of second matrix, that is B, so that is n again in our case, that's why this multiplication is possible। तो हमने यहाँ पे सिर्फ ये देखा है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। तो फिर से पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो इस केस में AB अगर हमें फाइंड करना है तो वो पॉसिबल है क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स A की नंबर ऑफ कॉलम इज n, सेकेंड मैट्रिक्स B की नंबर ऑफ रोज n, so matrix multiplication of AB is possible। हमने ये देख लिया कि दो मैट्रिक्स को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, that is condition for multiplication of two matrices। अब हमें ये देखना है कि हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स हम समझने का ट्राई करेंगे। If A is equal to, we have given a matrix, the order of this matrix is number of rows are 2, number of columns are 3, so order of A is 2 by 3 or 2 cross 3। B, rows are 3 and columns are 2, so its order is 3 by 2। Now I want to find out AB and B। तो पहले हम फर्स्ट देखते हैं AB। तो पहले हमें यह देखना है कि AB पॉसिबल है या नहीं। तो कंडीशन है फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज।
तो फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3 एंड सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज आर 3। फर्स्ट की कॉलम 3 है, सेकेंड मैट्रिक्स की रो 3 है, बोथ आर सेम, देयरफॉर AB इज पॉसिबल। अब हम AB का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें? तो सबसे पहले हम A और B दोनों को पास में लिख देते हैं ताकि हम उसका मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकें। सो 2 0 1 3 2 4 into 3 1 1 3 2 4। दोनों मैट्रिक्स हमने पास में लिख दिए। फिर से इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 3/2, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स 3, सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज 3, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब हमें देखना है कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए फ्रेंड्स हमें एक चीज याद रखनी है, आ उ। तो पहले मैट्रिक्स का आ, सेकेंड मैट्रिक्स का उ, ये हमने याद रखने के लिए ये टेक्निक डेवलप किया है। तो आ मींस आड़ी, उ मींस उबी। फिर से इंग्लिश में हम कहना चाहेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स में हम लेंगे रो और सेकेंड मैट्रिक्स में हम लेंगे उबी मींस कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम। तो मल्टीप्लिकेशन इसका होगा, हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, लेट्स चेक। सो दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 2 and 3, so 2 into 3, then we write compulsory plus, then second element 0 into इस कॉलम का सेकेंड एलिमेंट दैट इज 1, then प्लस इस रो का थर्ड एलिमेंट 1 इंटू इस कॉलम का थर्ड एलिमेंट 2। तो इस तरह से हमने जो मल्टीप्लिकेशन किया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट वाइज, उन्हें हमने ऐड कर दिया तो वो बन गया AB का फर्स्ट एलिमेंट। अब हम इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड के साथ में करेंगे और उसे लिखेंगे इस एलिमेंट के बाजू में। तो वी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। सो व्हाट वी गेट, 2 into 1, then compulsory plus 0 into 3, then 1 into 4. तो ये हमने फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन पहले फर्स्ट कॉलम के साथ में किया, उसका आंसर यहां पे लिखा। फिर हमने फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड कॉलम के साथ में किया, उसका आंसर हमने यहां लिखा। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन दोनों कॉलम के साथ में हो चुका है। नाउ वी विल टेक second row. So second row is 3 2 4 and we multiply with first column. So that is 3 1 2, element wise multiply करेंगे और add करेंगे तो 3 into 3, 3 into 3, then again plus second element रो का, कॉलम का सेकेंड एलिमेंट 2 into 1 प्लस थर्ड एलिमेंट रो का, फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट 4 into 2। तो ये सेकेंड रो का फर्स्ट
कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अब हम सिमिलरली सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ में करेंगे। So what we get, 3 into 1 plus 2 into 3 plus 4 into 4। तो फ्रेंड्स हमें ये जो वर्ड है आ उ, फर्स्ट मैट्रिक्स की आडी, सेकंड मैट्रिक्स की उबी। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की आडी मींस रो, सेकंड मैट्रिक्स की उबी मींस कॉलम। ये याद रखना है ताकि हम भूल ना जाए कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम फर्स्ट का रो, सेकंड का कॉलम इस वे में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये जो एलिमेंट्स है उसका हम सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। सो व्हाट वी गेट ओवर हियर, 2 into 3 that is 6 plus 0 into 1 that is 0 plus 1 into 2 that is 2, then 2 into 1 2, 0 into 3 0 plus 1 into 4 4, 3 into 3 9 plus 2 into 1 2 plus 4 into 2 8, then 3 into 1 3 plus 2 into 3 6 plus 4 into 4 16। अब हम इन एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। सो वी गेट 6 plus 0 plus 2 that is 8, 2 plus 0 plus 4 that is 6, 9 plus 2 11 plus 8 19, 3 plus 6 9, 9 plus 16 that is 25। So this is the multiplication of two matrices A and B। अब फ्रेंड्स ये AB जो है उसका ऑर्डर क्या होगा? तो हमने क्या देखा था कि A का ऑर्डर है 2/3, B का ऑर्डर है 3/2। कंडीशन क्या थी हमारे मल्टीप्लिकेशन की, फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स must be equal to number of rows of second matrix। तो ये दोनों सेम होनी चाहिए। अब इसका ऑर्डर हमें फाइंड आउट करने के लिए हम ये जो सेम था उसे कैंसिल कर दें, जो बाकी रह गया वो हमारे मल्टीप्लिकेशन में जो हमें मिला है उसका ऑर्डर होगा। तो फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/2। So you can check the order of this matrix is 2/2। तो आई होप फ्रेंड कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया होगा। आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है इस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। हमने जो एक वर्ड यहाँ पे लिखा है आउ, वो हम याद रखेंगे। तो पहले मैट्रिक्स की रो का मल्टीप्लिकेशन होगा दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम से। तो रो का मल्टीप्लिकेशन सभी कॉलम्स से करेंगे, उसे हम रो में लिख दिया। फिर हम दूसरी रो लेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन सभी कॉलम से करेंगे। इस वे में हम उसे प्रोग्रेस करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो सेम होनी चाहिए, तब हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो उसकी मेथड क्या है, पहले मैट्रिक्स की रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम से होगा। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब हमें इसी एग्जाम्पल में बीए कैसे करें वो हमें चेक करना है कि बीए पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो वो हमें कैसे मिलेगा। हमने पहले ए बी किया, ए बी पॉसिबल था। तो ए बी पॉसिबल हो तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बी ए भी पॉसिबल होगा ही। पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमें बी ए के लिए कंडीशन चेक करनी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए, तो हम उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकेंगे। तो यहां पे मुझे बी ए फाइंड आउट करना है, तो पहले हम लिखते हैं बी डॉट ए। सो नाउ फर्स्ट मैट्रिक्स इज बी एंड सेकंड मैट्रिक्स इज ए। तो नंबर ऑफ columns of first matrix that is B and that is 2 in our case। number of column of first matrix कि जो अभी B है वो है 2। this must be equal to number of
रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तो अभी सेकेंड मैट्रिक्स है ए, तो ए में नंबर ऑफ रोज है 2, सो बोथ आर सेम, सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी and number of rows of A are same, therefore we can say BA is possible. तो अब हम BA का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, तो हमने जैसे प्रीवियस एग्जांपल में किया था AB के लिए वही मेथड हम आउ याद रखेंगे। पहले मैट्रिक्स की आड़ी मींस रो, सेकंड मैट्रिक्स की उभी मींस कॉलम, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो वो करने के लिए हम सबसे पहले यहां पे B और A को लिख देते हैं, सो B इज 3 1 1 3 2 4, हमने यहां पे B लिख दिया इनटू, नाउ वी राइट A, सो A इज 2 0 1 3 2 4। अब हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 into 2, then again plus 1 into 3। तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अब हम फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ में करेंगे। So 3 into 0 plus 1 into 2, तो फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अब सिमिलरली नाउ वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम, तो 3 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 4 के साथ में होगा, सो 3 into 1 plus 1 into 4। Now we multiply second row with first column, we write over here. We multiply second row with second column, we write over here. We multiply second row with third column, we write over here. तो first हम multiply करते हैं सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ में, सो 1 into 2 1 into 2 plus 3 into 3, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो गया। नाउ वी मल्टीप्लाई सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम, सो दैट विल बी 1 into 0 plus 3 into 2, so सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो गया। नाउ वी मल्टीप्लाई सेकेंड रो विथ थर्ड कॉलम, so 1 into 1 plus 3 into 4, तो सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो गया है। नाउ वी विल मल्टीप्लाई थर्ड रो विथ फर्स्ट column, we write over here. Then we multiply third row with second column, we write over here. Then we multiply third row with third column, we write over here. So first we multiply third row with first column, so we get
2 into 2 plus 4 into 3. So now we multiply third row with second column. So 2 into 0 plus 4 into 2. Now we multiply third row with third column. So 2 into 1 plus 4 into 4. So now we will simplify this. So we get 3 into 2, 6 plus 1 into 3, 3. 3 into 0, 0 plus 1 into 2, 2. 3 into 1, 3 plus 1 into 4, 4. Then second row, 1 into 2 is 2 plus 3 into 3, 9. 1 into 0, 0 plus 3 into 2, 6. 1 into 1, 1 plus 3 into 4, 12. Now third row, 2 into 2, 4 plus 4 into 3, 12. 2 into 0, 0 plus 4 into 2, 8. 2 into 1, 2 plus 4 into 4, 16. Now we simplify this also. So we get 6 plus 3, that is 9. 0 plus 2, that is 2. 3 plus 4, that is 7. 2 plus 9, that is 11. This is 6. This is 13. 16, 8 and 18. So in this way we can multiply this BA. Now what will be order? So order of A was 3 by 2 and order of B was 3 by 2. Order of A is 2 by 3. Condition was first मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए. तो इसके आंसर का ऑर्डर क्या होगा? वो जो कंडीशन थी सेम, उसे हम अगर कैंसिल कर दें यहाँ पे तो ये 3 और 3 रह जाता है. तो इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3. So in this way we can multiply two matrices. Again let's do practice of example. So A is equal to 2 1 minus 3 0, B is equal to 1 5. Find AB and B. So let's find out first of all AB. So AB is possible or not, that we need to check. So number of column of first matrix, that is A. तो A की number of column है 2 and number of rows of second matrix, that is B. तो B की number of rows जो है वो है 1, which is not equal. First matrix की number of columns are 2. Its order is 2 by 2 and order of B is 1 by 2. तो पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए. तो यहाँ पे इक्वल नहीं है. So we simply write over here, therefore A into B is not possible. So AB is not possible. So now if AB is not possible, what about BA? We cannot say anything. We have to check the condition. So let's check for BA. So in BA, now first matrix is B. So number of column of first matrix, that is B. तो B की number of columns है 2. Must be equal to number of rows of second matrix, that is A in our case is, so number of rows of A is 2.
So both are same. So BA is possible. So we cannot find AB because it is not satisfying condition of multiplication, but we can find BA because our condition is getting satisfied. That is, number of column of first matrix must be equal to number of rows of second matrix. Now we have to find BA. So B into A. Let's write first of all B and A together. So B is 1, 5. A is 2. 1 minus 3 0. So how to multiply? First matrix की रो, second matrix की कॉलम, आडी उबी, first matrix की रो, second matrix की कॉलम. तो फर्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 5 का फर्स्ट कॉलम से, that is 2 minus 3. So what we get? 1 into 2 plus 5 into minus 3. तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो गया. नेक्स्ट वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम. सो दैट इज 1 into 1 plus 5 into 0. So that's it. यहाँ पे एक ही रो थी तो एक रो का हमने दोनों कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन कर दिया. So this is equal to 1 into 2, 2 plus 5 into 3, that is minus 15. 1 into 1 is 1 plus 5 into 0 is 0. So 2 plus minus minus. So 2 minus 15. So that will be minus 13. And 1 plus 0 is 1. So this is our answer. Now we have to check order. What is the order? तो इसका ऑर्डर था 1 क्रॉस 2. इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2. कंडीशन थी हमारी पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए. अब इसके ऑर्डर के लिए हम यहाँ पे इसे हटा देंगे तो ऑर्डर हो जाएगा 1/2. तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट. और सीक्वेंस क्या है, कौन सा मैट्रिक्स पहले है और कौन सा मैट्रिक्स बाद में है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी a into b इज नॉट इक्वल टू b into a इन जनरल. जैसा हमने इस एग्जांपल में देखा कि ab इज नॉट पॉसिबल बट ba इज पॉसिबल. BA का हमें आंसर मिल रहा था लेकिन AB पॉसिबल नहीं था. सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी वो क्रम के नियम का पालन नहीं करता है. दैट इज A into B इज नॉट इक्वल टू B into A. जैसे हमने देखा था कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव. A plus B will be definitely equal to B plus A for all matrix if those matrix can be added, condition is satisfied. So A plus B is equal to B plus A. But matrix multiplication is not commutative, यानी हम उसका सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो उसका आंसर सेम नहीं रहेगा इन जनरल. So next example, if A is equal to 3 1 2 2 3 4 and B is equal to 2 3 3 4 2 1, then find AB transpose. हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? AB transpose. So what we will do? We will multiply A and B and then we will find its transpose. It's very simple. So in solution, first of all we have to check whether AB is possible or not. So our first matrix is A, second matrix is B. So condition is number of columns of first matrix, that is A. So columns are 3, must be equal to number of rows of second matrix
that is B. So number of rows in second matrix is 2 3 3 4 3 2 1. So that is again 3. So both are same. Therefore we can write AB is possible. Sometimes friend, in exam you have given to find multiplication, but multiplication is not possible. So in that case we have to only write that multiplication is not possible and we have to mention the reason. Now how to multiply? So as we have done in earlier example, first of all write A and B together. So 3 1 2 2 3 4. Then B 2 3 3 4 2 1. Now we will multiply first matrix की रो, second matrix की कॉलम. तो first matrix की रो है 3 1 2, second matrix की कॉलम है 2 3 2. So multiplication will be 3 into 2 plus 1 into 3 plus 2 into 2. तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो गया है. नाउ वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम. सो 3 into 3, 1 into 4 plus 2 into 1. तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो गया. तो अभी फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो गया. नाउ वी विल मल्टीप्लाई सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम. सो 2 into 2 plus 3 into 3 प्लस 4 into 2. तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो गया. नाउ वी विल मल्टीप्लाई सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम. सो 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 1. So now simply multiply and add them. So 3 into 2 6 plus 3 plus 4. Then over here 9 plus 4 plus 2. Then this is 4 plus 9 plus 8. This will be 6 plus 12 plus 4. So this is equal to 6 plus 3 9 plus 4 13, 9 plus 4 13 plus 2 15, 4 plus 9 13 plus 8 21, 6 plus 12 18 plus 4 22. So this is the answer of AB. We have to find AB transpose. So in next step simply we have to find transpose of AB. How to find transpose? Simply we will convert rows into column. So first row will become first column. So that is 13, 15, and then second row will become second column. So 21 and this is 22. So this is finally answer of AB transpose. And we can check its order also. Its order of this matrix is 2 by 3. Its order is 3 by 2. So condition was column of first matrix must be equal to rows of second matrix. So both are same. So now cancel this 3 3. So order of this matrix will be 2 by 2. So here we can write 2 by 2. So this is the answer of AB. Now we will find transpose of this matrix. So order will be same. When we take
transpose, and if it is a square matrix, then order will be same, otherwise order will be changed. Like here it is 2 by 2, so in transpose order will be 2 by 2. If AB is of order 3 by 2, then AB transpose will be of order 2 by 3. अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो और कॉलम सेम है, तो ट्रांसपोज करने से उसका ऑर्डर सेम ही रहेगा. सो आई होप कि ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा. अब इस टाइप का कोई भी एग्जांपल एग्जाम में पूछे तो हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर जो भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है उसको यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं.